ठीक है. Now we have already finished with autotrophic mode of nutrition. The second mode of nutrition is heterotrophic mode of nutrition. All right. So let us discuss this heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition. We have already studied कि most of the green plants जो हैं they contain chlorophyll and they can make their own food. लेकिन there are certain organisms which do not contain chlorophyll and they cannot make their own food, and they are called as heterotrophic, and they depend upon other organisms for their food. So this heterotrophic, depending on their mode of obtaining food, जितने भी heterotrophic mode of nutrition है, it is basically classified into two types. One are parasites and the other are saprophytes. We'll be studying about each of them in detail. ठीक है. तो just like animals, some plants also, ये मैं animals की बात नहीं कर रही हूँ, मैं plants की बात कर रही हूँ. ज्यादातर green plants जो हैं green हैं, they can make their own food. लेकिन there are certain plants which have heterotrophic mode of nutrition because they cannot prepare their own food. So let us come first to parasites. Parasites जो होते हैं, they are plant which lives on or inside एक और दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं या उसके अंदर रहते हैं on an another organism which and that is called as host and derives the food from it. उसको हम कहते हैं parasite. आप समझ गए? It is a plant which lives on or inside another organism, वो essentially green होगा, and derives the food from it, and it is called as a parasite. ये नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं which obtain their food from living bodies of another plant, and those are called as parasites. लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें से वो फूड ऑब्टेन कर रही हैं उसको हम कहते हैं होस्ट. होस्ट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग प्लांट है जिसमें से वो अपना फूड डिराइव कर रही है. क्योंकि वो नॉन ग्रीन है, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. They need food, and since it is a plant, it cannot move around जैसे कि animals कर सकते हैं. So it lives on or inside another living organism which is green, which can make its own food. तो ये अपना फूड इस host plant से लेते हैं और इनको हम कहते हैं पैरासाइट. जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं वो क्लाइंब करते हैं ऑन द होस्ट प्लांट फ्रॉम विच they get all the food, and these parasite plant produces such special type of roots. ठीक है. और इनको sucking roots कहते हैं. वो उसके ऊपर अपनी roots penetrate कर देते हैं, उसके ऊपर grow करते हैं, अपनी roots उसमें penetrate कर देते हैं और सारा nutrition वहां से वो लेते हैं. अब एक एग्जाम्पल है इसका कस्क्यूटा, आपकी बुक में भी है, बट लेट मी शो यू. किरण मैम, all of you see this beta. मैम मैंने अभी क्लास में मैम हुआ एंटर. मैम कहाँ पर थे हम? एक्सक्यूज मी मैम. बेटा प्लीज वेट. हाँ जी बेटा, प्लीज सी दिस. दिस इज कस्क्यूटा और डॉडर. इसको डॉडर प्लांट भी कहते हैं. कस्क्यूटा, अब ये देखिए, ये जो ट्वाइनिंग स्टेम है जो ऐसे कर रही है, इट इज गोइंग अराउंड. ये दो मैंने पिक्चर्स आपको दिखाई हैं. दिस इज कस्क्यूटा और डॉडर प्लांट, एंड ये जो एंड दिस इज येलो इन कलर. यू कैन सी इट. दिस इज येलो इन कलर. इट इज नॉन ग्रीन. लेकिन ये किसके ऊपर है? ऑन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज ग्रीन इन कलर. ये देखिए ग्रीन इन कलर है. तो ये जो ग्रीन वाला प्लांट है दैट इज कॉल्ड होस्ट, और ये जो इसके ऊपर ट्वाइंड है इसको अमर बेल, ये बेल की तरह होता है ना, इसलिए इसका हिंदी नाम अमर बेल है. और ये वहां से होस्ट प्लांट से सारा अपना न्यूट्रिशन जो है वो डिराइव करता है. तो अब आप समझ गए कि ये जो पैरासाइट्स होते हैं दे आर एक्चुअली non-green plants which cannot prepare their own food and derive all the nutrition from a green plant by living on it
एंड दैट ग्रीन प्लांट जिससे वो अपना सारा न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं उसको होस्ट प्लांट कहते हैं, ठीक है। एंड वो होस्ट प्लांट को डिप्राइव करते हैं ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट्स, ऑलराइट। सो दीज आर वन टाइप ऑफ हेट्रोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफ्स which are called as parasites। और parasites में एक एग्जाम्पल है कस्क्यूटा जिसको डॉडर भी कहते हैं, अमरबेल भी कहते हैं, और एग्जाम्पल है मिस्टलटो, वीट रस्ट, कॉर्न स्मट, ये सारे भी parasites हैं। Now the second type what we had discussed or we need to discuss is the second type of heterotroph which is saprophyte, all right। saprophytes जो होते हैं they are non green plants which obtain their food from dead and decaying organisms। ये देखिए अब ये जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सैप्रोफाइट्स जो हैं, पैरासाइट्स जो थे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड ले रही है, लेकिन सैप्रोफाइट्स जो हैं they will obtain their food from dead and decaying matter। वो सारे ऑर्गेनिजम्स प्लांट और एनिमल्स जो कि डेड हो जाते हैं, डिके होने लग जाते हैं, उनके ऊपर ये नॉन ग्रीन प्लांट्स ग्रो करते हैं। they leave a solution over there and obtain liquid form में सारा का सारा न्यूट्रिशन, बिकॉज डेड एंड डिकेइंग में ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, तो उनके बॉडी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये सैप्रोफाइट्स उनके ऊपर ग्रो कर सोल्यूशन फॉर्म में अपना सारा न्यूट्रिएंट इस डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि दोनों ही नॉन ग्रीन बट the parasites obtain food from living organisms, whereas saprophytes obtain food from decaying organisms। Let me show you an example of एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइट्स विच इज मशरूम। मशरूम सब लोगों ने, हम लोग खाते भी हैं और हम लोगों ने देखे भी हुए हैं। मशरूम एक फंजाई है। फंजाई आर अ क्लास ऑफ ऑर्गेनिजम्स अगेन, जिनको हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। और ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर ऑब्टेनिंग देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। कोई वुड लॉग है जो कि ऑलरेडी डिके कर रहा है, तो ये उसके ऊपर ग्रो करने लग जाते हैं। अगर आप देखेंगे इस पिक्चर में भी आपको दिखाई दे रहा है, देयर इज अ लॉग ऑफ वुड जिसके ऊपर ये ग्रो करने लग जाते हैं। ये आप रेनी सीजन में कई बार अपने गार्डन में भी देख लेते हैं। तो फंजाई एक जैसे कि मशरूम होते हैं, ब्रेड मोल्ड्स होते हैं। ब्रेड मोल्ड्स भी आप लोगों ने देखे हुए हैं, जैसे ब्रेड के ऊपर ये फंगस आ जाती है, ये कॉमन एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने घरों में देखे हुए हैं। ये दोनों के दोनों सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना खाना डिराइव करते हैं। कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो भी सैप्रोफाइट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया। तो ये जो मशरूम्स होते हैं या जो ये फंजाई होते हैं, they do not contain chlorophyll, they cannot make their own food by photosynthesis। so the non-green saprophytic plants जैसे कि fungi obtain their food when they secrete कुछ digestive juices on the dead and decaying organic matter और उसको convert कर देते हैं into solution। and this mode of nutrition जिसमें कि plants take in nutrients from dead and decaying organic matter is called saprophytic nutrition। एंड प्लांट्स जो कि इस saprophytic मोड को यूज करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग देयर फूड आर टर्म्ड एज saprotrophs। ऑलराइट, देयर आर सम ग्रीन प्लांट्स which can obtain their food partly from soil atmosphere and partly from small insects। ये वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसाइज तो करते हैं, ठीक है, बट दे डू नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम व्हाट
process they are doing as photosynthesis, they do not obtain enough nutrients from soil and from atmosphere. तो वो green plants which obtain their food partly from insects are called as insectivorous plants. Insectivorous plants वो plants हैं जो कि green तो हैं, फोटोसिंथेसाइज भी करते हैं, लेकिन उनको इनफ न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। इनको कार्निवोरस प्लांट्स भी कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जहां ग्रो करते हैं ना, वो सॉइल जो होती है वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती है, इट इज नॉट कंटेनिंग सफिशिएंट नाइट्रोजन मिनरल। So what happens? These insectivorous plants trap insects by various methods, kill them, digest them to obtain that deficient nitrogen compound for their proper growth. और ऐसे ही कुछ आप लोगों ने लोअर क्लासेस में पढ़े हुए हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो हैं, उनके एग्जाम्पल है पिचर प्लांट एंड सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडर वर्ट, ये सारे के सारे जो हैं they are insectivorous plant. Insectivorous plant एक जो है उनके example I'll show you the image also. Yes beta, this is the example of insectivorous plant. All right, insectivorous plant जो है ये है pitcher plant. इसकी शेप देखिए, पिचर प्लांट में ये जो लीफ होता है ना, उसी का ब्लेड जो होता है, इट इज मॉडिफाइड इनटू अ हॉलो ट्यूब कॉल्ड पिचर। और ये जो लीफ यहाँ पर देखिए, ये जो लीफ का एपेक्स है, टॉप पार्ट ऑफ द लीफ है, वो एक लिड की तरह फॉर्म कर लेता है। ये लिड ऐसा होता है कि इट कैन क्लोज एंड ओपन, ऐसे बंद भी हो सकता है एंड ओपन भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इट रिमेन्स ओपन। सो इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर। इस पिक्चर के अंदर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि अंदर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। जैसे ही इंसेक्ट इसके आसपास भी आता है, ये जो यहाँ पर होता है, it is a very attractive part, so the insect gets attracted towards it, gets trapped और hair के अंदर फंस जाता है। और जैसे ही वो फंसता है तो अंदर वो इंसेक्ट थोड़ी देर में इस पिक्चर के अंदर मर जाता है। ये ट्रैप जो ऊपर से लिड बंद हो जाती है एंड द वॉल्स ऑफ द पिक्चर जो होते हैं, ये जो पिक्चर है इसकी जो वॉल्स होती हैं वो कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट करते हैं, जिससे कि ये जो इंसेक्ट होता है विद डाइजेस्ट प्रोटीन्स उसकी बॉडी में जितने होते हैं, दैट इट इज utilizing the body of the insect to form a simple nitrogen compounds को use करता है। These simpler nitrogen compounds जो होते हैं वो further absorb कर लेते हैं by the walls of the pitcher और used by the whole plant to cater to their deficiency of nitrogen. अब ये आपने ध्यान रखना है कि insectivorous plant आप देख सकते हैं कि ये green है, it can carry out photosynthesis, but they do not get nitrogen nutrient from the soil in which they grow. So insectivorous plants होते हैं, they feed on insects to obtain nitrogen compounds needed for their growth. और क्योंकि वो अपना थोड़ा सा खाना खुद बना सकते हैं, तो इसलिए उनको पार्शियल हेट्रोट्रोफ्स कहा जाता है। कंप्लीट हेट्रोट्रोफ्स नहीं है, पार्शियल है, क्योंकि उनको कुछ some of the food they get by photosynthesis and some by eating insects, so they are not complete heterotrophs. All right, let me show you another example. आप लोगों ने ये देखा हुआ है, ये भी एक insectivorous plant है, इसके अंदर भी ये देखिए hair like structures हैं। there is an come to know that heterotrophic mode of nutrition involves parasitic mode, saprophytic mode, and third, the partial heterotrophic mode, which is shown by insectivorous plants. All right, so this completes our mode of nutrition. Now, there are certain species of plants which live together, two different species of plants which live together as if they are part of the same plant and they help each other in obtaining food. इनको हम कहते हैं symbiosis. The third partial one we can call it. This process is known as symbiosis. Symbiosis एक ऐसा method है और इन plants को हम symbiotic plants कहते हैं, जहाँ पर कि दो डिफरेंट स्पीशीज एक साथ रहते हैं इन कनेक्शन विद ईच अदर
and they help each other in obtaining food. इसमें ज्यादातर एक प्लांट ग्रीन होता है, the other one is non-green. So if there is one species or one organism which is providing food and the other organism is providing shelter, all right, तो ये दोनों जो हैं they live in tune with each other. अब ये जो न्यूट्रिशन होता है इनमें सिम्बियोसिस में एक इसका बेस्ट एग्जांपल है लाइकेंस. लाइकेंस आपने एक कई बार नोट किया होगा, एक ग्रीन पैची सा ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रेनी सीजन ऑन द वॉल्स में भी या फिर कहीं पर गार्डन के पास आपको दिखाई देता है. ये जो लाइकेंस होते हैं दे आर ग्रीन कलर्ड प्लांट कॉल्ड एल्गा which is living with a non-green plant fungus. They live together. ठीक है, the fungus holds the alga cells. इसमें अगर हम लाइकेंस में बोलते हैं तो दो तरह के ऑर्गेनिजम्स जो हैं that is algae and fungus. ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि algae जो है वो ग्रीन है और फंगस जो है वो नॉन ग्रीन है. अब आप ये भी देखिए कि जो एल्गी है हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि ये वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर प्लांट लाइक बॉडी नहीं होती है लेकिन उनमें क्लोरोफिल होता है, दे कैन फोटोसिंथेसाइज. और जो फंगस होता है उनकी प्रॉपर दे हैव अ बेटर बॉडी स्ट्रक्चर बट दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. सो दे लिव टुगेदर, सपोर्ट ईच अदर. The fungus, algae is providing the food and fungus is providing the shelter for it to live. And ये दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअली एक दूसरे को हेल्प करते हुए they live together. क्योंकि वो एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ म्यूचुअली हेल्प कर रहे हैं, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं. क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. ऐसे रिलेशनशिप में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की मदद कर रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ मदद करते हुए दे लिव टुगेदर एंड हेल्प ईच अदर टू सर्वाइव. ठीक है, इट इज एडवांटेजेस टू बोथ द ऑर्गेनिज्म. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज एडवांटेजेस टू बोथ द ऑर्गेनिज्म. एल्गे गेट्स अ शेल्टर एंड फंगस गेट्स फूड. समझ आ रही बात? तो इस तरह के रिलेशनशिप का एक बेस्ट एग्जांपल है लाइकेन. एक और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो राइजोबियम बैक्टीरिया हमने पहले डिस्कस किया था वो भी हम डिस्कस करते हैं. पहले आपको बता दें कि सिम्बायोसिस और पैरासाइट में क्या डिफरेंस है. सिम्बायोसिस और पैरासाइट्स में ये डिफरेंस है कि दोनों जो है यहाँ पर वो डिप्राइव कर रहा है, यहाँ पर वो होस्ट को डिप्राइव कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, उसके न्यूट्रिएंट्स यूज कर रहा है. इन रिटर्न को कुछ नहीं दे रहा है उसे, इन रिटर्न कुछ नहीं दे रहा है लेकिन उससे न्यूट्रिएंट्स गेन कर रहा है. यहाँ पर एल्गे जो है ये इसको फूड प्रोवाइड कर रहा है लेकिन फंगस इसे जो है इसके न्यूट्रिएंट्स को यूज कर रहा है लेकिन वो उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है. तो दोनों की आपस में जो है एक सर्वाइवल के लिए दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हुए एक साथ रह रहे हैं. तो ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है इस कंडीशन में दो डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे को म्यूचुअली हेल्प करते हैं टू सर्वाइव. एंड दोनों को एडवांटेज होता है, इसको शेल्टर मिल रहा है, एल्गे को फंगस को फूड मिल रहा है, सो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं. सो सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज टर्म्ड एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. अब हम दूसरे एग्जांपल की बात कर रहे थे. अनदर एग्जांपल ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज मैम Rhizobium bacteria which lives in the roots of leguminous plants. legumes वाले जो pulses होते हैं, beans, peas, ये सारे जो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, इनकी रूट्स में रहते हैं. अब इनका फायदा क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप कर सकता है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट नहीं कर सकता है. सो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है कन्वर्ट करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस इनटू वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है जो प्लांट खुद नहीं कर पाएगा. लेकिन इसको शेल्टर चाहिए तो ये इसकी रूट्स में प्रेजेंट होता है. लेग्यूमिनस प्लांट उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, उसको जगह दे रहा है रहने की, और उसके बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया प्लांट के लिए क्या कर रहा है?
वो इसके लिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप कर रहा है और उसको कन्वर्ट कर रहा है इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड, जो लेग्यूमिनस प्लांट यूज करेगा फॉर मेकिंग नाइट्रोजन रिच फूड विच इज पीस, बीन्स, राजमा, ठीक है, पल्सेस, ये सारे जो है नाइट्रोजन रिच फूड हैं। इनको नाइट्रोजन रिच फूड बनाने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत है। नाइट्रोजन जो है प्लांट अपने आप नहीं यूज कर सकता है, तो अपने रूट्स में लेग्यूमिनस प्लांट्स, जो पीस का प्लांट है, जो बीन्स का प्लांट है, जो राजमा का प्लांट है, पल्सेस दालों के जो प्लांट है, उनके रूट्स में, उनको लेग्यूमिनस प्लांट्स कहते हैं, उनके रूट्स में वो इस बैक्टीरिया को शेल्टर देता है। तो अब राइजोबियम बैक्टीरिया उसके लिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ट्रैप करता है, कैच करता है, उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू नाइट्रोजन के सब्सटेंसेस, जो कि लेग्यूमिनस प्लांट्स यूज करेंगे टू प्रोड्यूस दिस नाइट्रोजन रिच फूड विच इज पीस, बीन्स, राजमा, पल्सेस। ये सारी चीजें जो है नाइट्रोजन रिच होती हैं, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये प्लांट्स तब ये बना सकते हैं जब राइजोबियम बैक्टीरिया जो उनके रूट्स में प्रेजेंट है वो उनको नाइट्रोजन को ट्रैप करके देगा। तो ये भी एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप हो गई कि वो एक दूसरे की हेल्प करते हुए इसको शेल्टर मिल गया, लेग्यूमिनस प्लांट्स के लेग्यूमिनस प्लांट्स को नाइट्रोजन मिला, जो कि वो अपना नाइट्रोजन रिच फूड बना रहे हैं। तो ये भी एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स। एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है लाइकन्स, जिसमें एक एल्गी और फंगस एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो ये जो थी वी हैव स्टडीड सिम्बियोसिस in organism where two organisms are mutually helping each other to survive, and such kind of relationship is called as, यहाँ पर कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की हेल्प करते हैं, but they do not harm each other, they mutually help each other to survive. All right, so this is all for